ایران پر حملے کی منظوری، امریکی صدر نے میڈیا کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے امریکی اخبار کو اندازہ نہیں کہ میں ایران کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کی منظوری دے دی۔ امریکی اور برطانیہ میڈیا کا دعویٰ۔ بلومبرگ اور وال سٹریٹ جرنل نے لکھا کہ حملہ کب کرنا ہے آخری فیصلہ روک رکھا گیا ہے۔ امریکی جنگی بحری جہاز مشرقی بحیرہ روم اور عرب سمندر میں پہنچ گئے۔ گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ آئندہ ہفتہ فیصلہ کن ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ میں ایران پر حملے کا حکم دوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حملوں کا حکم نہ دوں۔ ابھی ایران کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے۔ ایران سے معاملات سفارتکاری سے حل کرنے کی کوششیں۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے سفارتکار ایران سے مذاکرات کریں گے۔ تینوں وزرائے خارجہ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مذاکرات میں شرکت کی تصدیق کر دی۔ مذاکرات کل جنیوا میں ہوں گے۔ یورپی وزرائے خارجہ کی ایرانی ہم منصب سے ممکنہ ملاقات پر امریکہ نے بھی اتفاق کیا۔ ایران اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل کا اجلاس بھی کل طلب۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی امریکی صدر ٹرمپ سے دماغ ٹھنڈا رکھنے کی اپیل۔ ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری کی خبر پر رد عمل میں برطانوی وزیر اعظم نے کہا، ضرورت اس بات کی ہے کہ متحارب فریق پیچھے ہٹے، محاذ رائے کسی کے مفاد میں نہیں۔ برطانیہ ٹھنڈے دماغوں کے ساتھ سفارتکاری کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا اور تباہ کن حملہ۔ حملوں میں 24 افراد ہلاک اور 838 زخمی ہو چکے۔ زیر زمین بنکر میں موجود 4 اسرائیلی بھی مارے گئے۔ تل ابیب سمیت 6 علاقوں میں تباہی۔ اسٹاک مارکیٹ کی عمارت کھنڈر بن گئی۔ انٹیلیجنس وار روم سمیت کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر۔ پاسداران انقلاب کی ڈیمونا جوہری پلانٹ کے قریب عوام کو انخلا کی وارننگ۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے سروکا ہاسپٹل کے قریب اسرائیل کے انٹیلیجنس دفتر کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں سروکا ہاسپٹل اور شہری آبادی بھی زد میں آ گئی۔ جنوبی اسرائیل کے شہر بیر شیوا اور ہولون کو بھی نشانہ بنایا۔ حیفا اور بحیرہ گلیلی میں دھماکے۔ کارمل اور جنوبی مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر میزائل اور راکٹ فائر کا الرٹ جاری۔ اسرائیل کے شمالی علاقوں میں بجلی بندش کی اطلاعات۔ صہیونی میڈیا کے مطابق حملوں میں 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والا سجیل 2 میزائل استعمال کیا گیا۔ بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے بھی اہداف کو نشانہ بنایا۔ 5000 سے زائد اسرائیلیوں کی نقل مکانی۔ تہران کو ہسپتال پر حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ایرانی حکومت کو پیغام۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کی دھمکی۔ کہا ہسپتال پر حملے کا بدلہ خامنائی سے لیں گے۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف دہشت گردی جاری۔ نتنز جوہری تنصیب کو دوبارہ نشانہ بنایا۔ عراق اور خندق میں غیر فعال جوہری ری ایکٹرز پر بھی حملے کر دیے۔ تہران سمیت مختلف علاقوں میں بمباری۔ داخلی سلامتی کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملہ۔ مغربی تہران میں بھی دھماکے۔ صہیونی حملوں کے بعد آگ لگ گئی۔ ایرانی فورسز کا تہران میں مزید 2 اسرائیلی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کا ٹیلیفونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا ایران اسرائیل جنگ کے سفارتی حل پر زور۔ ترجمان کرملن کے مطابق شی جن پنگ اور پوٹن نے ایران پر اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کی۔ صدر پوٹن جنگ عظیم دوئم کی تقریبات میں شرکت کے لیے چین جائیں گے۔ ایران اور اسرائیل کشیدگی کم کریں، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا مطالبہ۔ کہا ایران اور اسرائیلی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ عمان سے بھی کہا ہے کہ وہ کشیدگی میں خاتمے کے لیے کردار ادا کریں۔ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کے مقام کی اس وقت تصدیق ممکن نہیں۔ عالمی جوہری ادارے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجی کارروائی کی وجہ سے معائنہ کار کام نہیں کر پا رہے۔ ایران کی 409 کلو انتہائی افزودہ یورینیم 10 ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے کافی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ اس ذخیرے کو IAEA کی مہر کے تحت محفوظ ہونا چاہیے۔ اس ذخیرے کی جگہ اب غیر واضح ہے۔ تہران نے کہا تھا کہ حملے کی صورت میں اسے منتقل کیا جا سکتا ہے۔
अमेरिका जंग में कूदा तो इसे मालूम है कि उसका ज़्यादा नुकसान होगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि इसराइल ने बड़ी गलती कर दी, उसे इसके मुजरिमाना इक़दामात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। किसी भी मुल्क का ईरान पर हमले में शरीक होने का कोई जवाज़ नहीं। हम जौहरी हथियार नहीं रखते, इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज़ है। पाक अमरीका तारीखी और देरीना ताल्लुकात में नया बाब। रकम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPR के इलामे के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। मुआशी और तजारती ताउन, माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप की कायदाना सलाहियतों की तारीफ। सदर ट्रंप ने पाक अमरीका ताउन और खित्ते में पाकिस्तान की क़याम अमन की काविशों को सराहा। मुलाकात में ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो, खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकोफ भी मुलाकात में मौजूद थे। एलामे में कहा गया है कि अमरीकी सदर के दौरे की तारीख का तयन बाहमी मुशावरत से होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलना एजाज़ है। उन्हें जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तानी ओहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। सैयद आसिम मुनीर बाअसर शख्सियत के मालिक हैं। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात की 78 साला तारीख का सबसे अहम मोड़ है। खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम कर लिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, यह मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के ताउन से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान बेहतरीन ताल्लुक कायम हुआ और ये कामयाबियां मुमकिन हुई हैं। सेनेटर फैसल वाटा का इतना कहना है कि अमरीकी सदर ने भी कभी किसी आर्मी चीफ को ऐसा प्रोटोकॉल नहीं दिया। पाकिस्तान की इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत की सख्त मजम्मत। मौजूदा सूरत हाल इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। तनाज़े के मुज़ाकराती हल पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफ़क़त अली खान ने कहा कि हम ईरान के साथ सिफारती ताउन जारी रखेंगे। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला IAEA सेफगार्ड्स और दीगर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तेहरान को अपने दिफा का हक है। आलमी बरादरी को जारह को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी प्रोटोकॉल के मुताबिक भारतीय यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त है। उम्मीद है कि महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर सिख यात्री पाकिस्तान आएंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, अमरीकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात सिफारती अहमियत की हामिल है। ट्रंप के जुमले मुस्बत अंदाज में थे। ईरान पर इसराइली जारहियत रुकवाने का मिशन। OIC वज़ीर ख़ारिजा का खुसूसी इजलास हफ्ते को तलब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कल इस्तांबुल पहुंचेंगे। ईरान पर हमलों से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ बयान करेंगे। इसहाक़ डार की सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें भी स्केजुअल हैं। बांग्लादेश, आज़रबाईजान, तुर्की, मलेशिया, मिस्र, कुवैती हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। OIC राबिता ग्रुप बराए कश्मीर का इजलास भी इतवार को होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा बख्तियारोव सैदोव के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, फ़रीक़ैन का दो तरफ़ा और अहम इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल। OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल के इजलास के एजेंडे के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान है। हमें खुलकर ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, इसराइल लबनान और शाम पर भी हमले कर चुका। इराक पर जो गुजरी है वो सबके सामने है। इसके बाद ईरान पर हमलावर है। हमें अपनी पॉलिसी पर गौर करना होगा। ईरान इसराइल को जवाब देता है तो उसके हाथ रोके जा रहे हैं। पाकिस्तान भारत को जवाब देता है तो उसके भी हाथ रोके जाते हैं। दुआ है कि पाकिस्तान दुश्मन की बदनजरों से हमेशा महफूज रहे और मुल्की तरक्की हो। OIC बस दिखावा है। बैनुल-अक़वामी इदारों की कोई हैसियत नहीं रही। बजट के हवाले से बात करते हुए कहा कि बजट वज़ीर ख़जाना ने नहीं, IMF ने बनाया है। आप में बजट बनाने की सलाहियत ही नहीं है। मौलाना फजल रहमान की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और वफाकी बजट के हवाले से भी बातचीत की गई।
जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के तनासुब से फैसला सुनाया। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरखास्तें निपटा दी। जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया। अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत सीनियरिटी के मामले को जितनी जल्दी मुमकिन हो तय करें। सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय करने तक कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ही अमूर सर अंजाम देते रहेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया क्या माजी में किसी जज के आर्टिकल 200 के तहत तबादला हुआ। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि माजी में जजेस ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं मिलती। जजेस ट्रांसफर में सदर और वजीर आजम का किरदार महदूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले जुडिशल कमीशन के पास जजेस के तबादले का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुनीर मलिक को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी दरखास्त में जजेस को डेप्यूटेशनिस्ट लिखा गया है। जजेस को डेप्यूटेशनिस्ट कैसे कहा जा सकता है। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने FIA, IB, FBR और स्टेट बैंक समेत दीगर मुतल्लका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कार्टलाइजेशन में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म। कहा टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी से सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न कराने वालों का अकाउंट बंद करने का फैसला। बिजली और गैस के मीटर काटने की भी तजवीज़। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ेयाल की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं उनको टैक्स नेट में लाना ज़रूरी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपये कार्बन लेवी है। डिजिटल ई-कॉमर्स पर 5% टर्नओवर टैक्स लगाने की तजवीज़ मंजूर। कमेटी ने फाटा और पाटा की सनतों के लिए टैक्स छूट में कमी की तजवीज़ भी मंजूर कर ली। बिजली के बिल्स में 10% सरचार्ज की हद ख़त्म करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म की मुल्क में जाली अद्वियात के घिनौने कारोबार के मुकम्मल सद्देबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की हिदायत। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि शोबे सेहत में इस्लाहात किसी भी किस्म की सियासी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म को शोबे सेहत की तरक्की में हायल रुकावटों से आगाह किया गया। मसाइल के पायदार हल के हवाले से सिफारिशात पेश। शहबाज शरीफ की जानिब से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुतहर्रिक क़यादत की पजीराई। अब तकलीफ की सूरत में आपको हस्पताल जाने की जरूरत नहीं, हस्पताल खुद आपके पास आएगा। 911 क्लिनिक ऑन व्हील्स का पूरे सूबे में फैल जाना सेहत के शोबे में इनकलाब है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा जनूबी पंजाब में बच्चों को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। सारी तवज्जो पंजाब के आवाम को मुफ्त और मेयारी इलाज देने पर है। मुल्क में सेहत और तालीम से मुताल्लिक बहुत दावे हुए, काम सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। मरीम नवाज ने बताया कि कंधे की तकलीफ के बायस कल मियो हॉस्पिटल गई, आम मरीज की तरह पर्ची बनवाई, MRI कराई, सरकारी अस्पताल में बेहतरीन इलाज देकर बहुत। वज़ीर आला सिंध का सिफारती मिशन से वापसी पर कल बिलावल भुट्टो जरदारी का शानदार इस्तकबाल करने का ऐलान। मुराद अली शाह ने मीडिया टॉक में कहा कि बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मौसर अंदाज में मौक़िफ़ पेश किया। उनकी सिफारतकारी की वजह से दुनिया का नुक्ता नज़र बदल गया। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद भी अच्छे नताइज आ रहे हैं। शाज़िया मरी ने कहा बिलावल भुट्टो ने भारत का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाया, पाकिस्तान का पैगाम आलमी दुनिया तक पहुंचाया। बजट को अवाम दोस्त, विफाक दोस्त और खातीन दोस्त बजट बनाया जाए। आसिफा भुट्टो का कौमी असम्बली के फ्लोर पर मुतालबा। कहा इस मुल्क की आधी आबादी खातीन पर मुश्तमिल है, बजट में खातीन के लिए मजीद फंड्स रखे जाने चाहिए। आसिफ जरदारी की बेटी का भारत को भरपूर जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। कहा अगर दोबारा बुरा वक्त आया तो हर मर्द, औरत और बच्चा मुल्क के दिफा के लिए लड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के खिलाफ नजर ثانی केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने आपको इलेक्शन से पहले 100% इंसाफ दिया था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि हर दौर में कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है, जज मुस्लिहीन नहीं हो सकते, ये काम सियासी जमातों का है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को इस पहल से निकाल दें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सर ये सब कुछ आप अपने फैसले में लिख चुके हैं, मुझे आप अपना फैसला तो पढ़ने दें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि कागजात नामजदगी पर फैसला आरोज ने करना होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि मैच्योर सियासी जमातें गैर यकीनी सूरत हाल का मुकाबला करती हैं। आप देर से आए मगर दुरुस्त नहीं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के पेश होने पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। ऑडियो लीक केस में भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि क्या लाइसेंस का पूछना जुर्म है, मुझ पर ही ऑडियो लीक का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए ये तो मेरिट पर बात होगी, आप पेश ही नहीं होते। दोनों केसेस की समाअत मुलतवी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का ए और एएस लेवल इम्तिहानात के पर्चे लीक होने का एतराफ़। पर्चे लीक होने की तहकीकात मुकम्मल, मुलविस अफराद की तलाश जारी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का कहना है कि हिसाब के पर्चे 4-2 के 2 सवालात, कंप्यूटर साइंस पेपर 2 का 1 सवाल का कुछ हिस्सा लीक हुआ। इम्तिहानात में शरीक तलबा को लीक होने वाले सवालात के पूरे नंबर्स दिए जाएंगे।